اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد وعجل فرج. ناظرین حاضرین مشترکین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان نواب صابر آپ حضرات کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں اور تمام ناظرین قائم ٹی وی کے آباد رہیں شاد رہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ عشرہ محرم کی چھٹی مجلس جس کا عنوان امام حسین علیہ السلام اور ہندوستان ہے. علی جناب قبلہ و کعبہ مولانا ظفر الحسن صاحب قبلہ اس کو بخوبی منبر سے فرما رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور ہندوستان کیا ہے. ناظرین کرام، میں چاہتا ہوں کہ ایک سوز اور ایک مرثی کے دو چار بند آپ کی خدمت میں پیش کروں. بسم اللہ بسم اللہ. لگے ہتھیار جب اکبر سجانے اللہ اور لگا ماں کا کلیجہ منہ کو اے کہیں چپکے سے عابد کے سرہانے اور لگیں بیمار کا شانہ ہلانے. اللہ اٹھو بیٹا اٹھو گھر لٹ رہا ہے اور علی اکبر بھی مرنے کو چلا ہے. یہ ہتھیار جب فاتحہ. اللہ بسم اللہ. غیر المغضوب صلی اللہ محمد. 5 بند مرثی کے پیش کرتا ہوں. جی عطا فرمائے. بسم اللہ. اے مومنو جب برچھی کھا کے گم ہوا اکبر سنو نہال فرزند فاطمہ کا کہوں کس زبان سے حال اور لرزہ تھا جسم پاک میں خورشید کی مثال اور چلاتے تھے شہید ہوا ہائے میرا لال اور تھامے ہوئے کلیجے کو اور گھبرائے پھر
کرتے تھے، اور ایک ایک قدم پر ٹھوکرے کھا کھا کے گرتے تھے، اور ہر دم پکارتے تھے کہ اکبر کدھر گئے، اے نور چشم بانوے بے پر کدھر گئے، او مرتا ہے باپ اے میرے دلبر کدھر گئے، آواز تو شبیہ ہے پیمبر کدھر گئے، اے میرے شیر کیا کسی اور جنگل میں جا چھپے، اے میرے چاند کون سے بادل میں جا چھپے، آئی کسی طرح سے نہ اکبر کی جب صدا، آدھا کو جب پکارے شہنشاہ کربلا، اور سبط نبی کے حال پہ اب رحم کی ہے جا، او بتلاؤ ظالموں میرے اکبر کا کچھ پتا، بتلاؤ ظالموں میرے اکبر کا کچھ پتا، اور برچھی ستم کی کھا کے وہ پیارا گزر گیا، ارے فوج شام چاند ہمارا کدھر گیا، اے فوج شام چاند ہمارا کدھر گیا، وہ برچھی ستم کی ہو گئی سینے کے آر پار، اور رہوار سے جدا نہ ہوا پر وہ ہے شہ سوار، اور گھیرے تھے چار سمت سے زخمی کو نیزوار، برسا رہے تھے تیر کمادار 10,000، اور برسا رہے تھے تیر کمادار 10,000، مانند شیر جھومتا تھا فرش زین پر، ارے بوندے ٹپک رہی تھی لہو کی زمین پر، جب برچھی کھا کے گم ہوا ناظرین میں متوانہ گزارش کرتا ہوں علی جناب قبلہ و کعبہ مولانا ظفر خان صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے بیان کو جائیں۔ یہ حضرات ہم سب درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، المعصومین المظلومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وتشہیم اجمعین، الان الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے ناظرین،
मुसलसल आपसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हिंदुस्तान के उन्वान से गुफ्तगू जारी व सारी है, और ये सिलसिला आज छठे मरहले पर आ गया है। आज मुहर्रम की 6 है और सारी दुनिया में और सारे ज़माने में आज का दिन शहजादे अली अकबर से मंसूब किया जाता है। मैंने सूरह यासीन की तिलावत का शरफ हर वक्त और इसलिए शरफ हासिल किया है ताकि सूरह यासीन जो असल में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने ही से मुताल्लिक़ है और इसका असल ताल्लुक़ है करबला से भी और करबला वालों से भी। इसी सूरह यासीन में आले यासीन भी है, और आले यासीन का मतलब होता है करबला के वो मुसाफिर के जिन्होंने कूफा और शाम के बाजार को फतह करके कुरान को महफूज कर दिया। यासीन के अदद हैं 71, और 71 का मतलब 72, इसलिए कि यासीन इमाम हुसैन से अलग होकर के 71 साथियों का जिक्र करता है, और ताहा जो है उसके अदद हैं 14, उसमें इमाम हुसैन। इसलिए हमारे यहाँ बेहक के ताहा और यासीन की लफ्ज़ इस्तेमाल की जाती है, यानी उसमें चहरदा मासूमीन और शुहदाए करबला और असीरान करबला की वजह से। हम जिस गुफ्तगू में हैं वो ये है कि हिंदुस्तान से इमाम हुसैन का ताल्लुक़ कैसे है, क्यों कर है और कब से है, और इतना गहरा संबंध कैसे हुआ कि आज यहाँ का हिंदू भी बैठ करके मालाओं में जपता है या हुसैन या हुसैन या हुसैन। गुरुद्वारे का गुरु भी आवाज देता है या हुसैन या हुसैन या हुसैन। गुरु नानक जो मक्के और मदीने की सरहदों से गुजर कर बगदाद भी गए, करबला भी गए और नजफ भी गए। ये हिंदुस्तानियों में ये कैफियत क्यों पैदा हुई, जबकि वाकया इराक का है, अरब का है, मगर हिंद की सरहदों से इसका गुदाज, इसका दर्द, इसका एहसास क्यों है? इसलिए कि करबला इंसानियत का दर्द सिखाती है। अब जहां जहां भी इंसान हैं उनके दिलों में इंसानियत है, तो यकीनन हुसैन जरूर 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 आएंगे। यही वजह है कि दुनिया का हर राइटर, हर मुसन्निफ, हर कलमकार, हर पोइट, हर कवि जब भी कभी कुछ लिखता है तो वो लिखते लिखते इमाम हुसैन की चौखट पर जरूर आता है। आप इसी हिंदुस्तान के तमाम जितने भी शोरा हैं, जितने मुसन्निफीन हैं, उनको आप पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि हर शख्स करबला से गुजर करके जरूर जरूर आता है। करबला जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता शाम के महलों से गुजर कर और कूफे की वादियों से गुजर कर पहुंचता है, और एक रास्ता मक्के और मदीने से और गदीर का जाम पी करके करबला पहुंचता है। तो जो शाम के महलों से गुजर करके जाते हैं वो नहीं समझते कि हुसैन क्या हैं, लेकिन वो जो मक्के और मदीने से और गदीर खुम की मैं पी करके करबला पहुंचते हैं तो वो जरूर जरूर हुसैन को याद रखते हैं। हुसैन आफाकी शख्सियत हैं। अभी मेरे भाई नवाब साबिर मोहतरमुल मकाम जिक्र कर रहे थे रतन सेन का। मैं ये बात जरूर जरूर अर्ज करना चाहूंगा, इसलिए कि आपके पड़ोस में ही वो जगह है, आज भी सैदपुरी है उसका नाम, और वहीं पास में गंगा बहती हुई है। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मोजिज़ात आफाकी हैं। तमाम मोजिज़ात को लोगों ने देखा है, चाहे वो चांद के 2 टुकड़े हों, चाहे सूरज का पलटना हो हजरत अली के इशारे पर, या सितारे ज़ोहरा का दर सैयदा पर आना हो, ये सारे जमाने ने देखा है। और इसी मोजिज़े को देखते हुए, चूंकि हिंद की तहजीब में चांद और सूरज का बहुत बड़ा मकाम है, हिंद के नस्लों में आज भी
चंद्रवंशी और सूर्यवंशी लोग पाए जाते हैं। सिर्फ हिंद की तहजीब में नहीं बल्कि चाइना की तहजीब में भी चांद और सूरज का एक मकाम है। तातारियों की तहजीब में, मंगोल के कल्चर में, जापानियों के यहाँ, मिस्र के म्यूजियम में आज भी चांद और सूरज रखे हुए हैं, उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं। बल्कि पूरी दुनिया में इंसानियत का कारवां जब आगे बढ़ता रहा और खुदा ने चाहा था कि मेरी मार्फत हो, मगर इंसान गुफाओं से लेकर पहाड़ की मंजिलों तक पहुंचते पहुंचते इत्तफाकन उसे भी खुदा मान बैठा जो खुदा नहीं थे। उसे भी खुदा मानने लगा जो माबूद नहीं थे बल्कि अब्द थे। और उन्हीं में हिंद की तहजीब में, हिंद के कल्चर में, हिंद के धर्म और मजहब में लोग चांद की भी पूजा करते थे और सूरज को भी देवता मानते थे। चुनांचे यहां एक फेस्टिवल है पूर्णमासी का, और पूर्णमासी के फेस्टिवल में आज भी लोग गंगा और जमुना और गोमती और सरस्वती नदी के किनारे जा करके पानी के अंदर चांद की जियारत करते हैं, उसका दीदार करते हैं। जिस दिन चांद मुकम्मल होता है, 14वीं के चांद की रात में, और ये मौजज़ा भी सरकार का 14वीं के चांद में हुआ, जैसा कि मैंने कल की मजलिस में जिक्र किया आपसे। वहां का राजा जो पूर्णमासी की रात में गंगा के किनारे बैठा हुआ पूजा कर रहा था कि एक मर्तबा उसकी नजर पानी में पड़ी, उसने पानी में देखा तो चांद 2 हिस्सों में बट गया। फिर उसने आसमान की तरफ देखा कि कहीं मेरी नजर का धोखा तो नहीं है, तो वहां भी देखा उसने कि चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। और फौरन ही उसने नजूमी को पुकारा, ऐ नजूमी बताओ तुम, ये चांद हमारा देवता आज 2 हिस्सों में कैसे तकसीम हो गया? नजूमियों ने बताया कि अरब में एक महापुरुष आया हुआ है, उसकी कौम ने उससे दरखास्त की थी कि अगर तुम चांद के 2 टुकड़े कर दो तो हम तुम पर ईमान लाएंगे। नाजरीन, दुनिया और जमाने के राजाओं और बादशाहों की हुकूमतें नजूमियों पे चलती थी, मगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हुकूमत नजूमियों पर नहीं, इसलिए कि नजूमी सितारों का मोहताज है और अहले बैत के सितारे मोहताज हैं, अहले बैत के चांद मोहताज हैं, अहले बैत के सूरज मोहताज हैं, अहले बैत के सारा जमाना मोहताज है। अगर जमाने वालों को अपनी मुश्किलें आसान करनी है तो वह अहले बैत के घराने में आ जाएं। चुनांचे जब उसने सुन लिया कि कोई महापुरुष अरब में आया हुआ है, तो उसका वजीर आजम था जिसका नाम था रतन सेन, जो सैदपुरी में आज भी आराम कर रहे हैं और उनका मजार है। हमारे मोहतरम जनाब नवाब साबिर साहब के वतन से ठीक 5 किलोमीटर के अंदर, और पर ये सब कुछ लिखा हुआ था, चांद के 2 टुकड़े करने का मोजज़ा। और अभी हमने मालूमात की तो वहां की अदलिया में इस पूरे वाक़े का एविडेंस मौजूद है, उसकी शहादत मौजूद है। बस एक मर्तबा राजा ने कहा, रतन सेन जब इतना बड़ा महापुरुष है जिसने हमारे देवता को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, जिसका हमारा देवता इताअत कर रहा है जिसकी, तो ऐसे में उसकी इताअत हम पर भी लाजिम है और हम भी उसके हुक्म की तामील करें। और ये कह करके कि जाओ और जा करके उनसे मिल कर आओ। और वो तैयार हुए, मगर राजा ने कहा कि हिंद की सरजमी पर जब भी कोई किसी से मिलता है तो उसकी खिदमत में तोहफे और तोहफे भेजता है। और चुनांचे उसने तोहफे दिए, हिंदुस्तान के तोहफे, जिसमें पान, छालिया, कत्था, चूना, जो भी हिंदुस्तान की सरजमी का तोहफा था उसने दिया। और ये लोग यहाँ से निकले और निकलने के बाद मक्के में पहुंचे। पता ये चला कि वो महापुरुष मक्के से मदीने को हिजरत कर गया है, क्योंकि नबी का ये आखिरी मुजज़ा था और खुदा ने ये कह दिया कि मेरे रसूल ये अगर नहीं मानेंगे तो फिर कभी नहीं मानेंगे।
اور چنانچہ اللہ نے حکم دیا ان اللہ یامرک بالہجرت، اے میرے نبی آپ کو اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ ہجرت کر جائیے، اور ہجرت کرتے وقت اپنے بستر پر رسول مولا کائنات کو سلا جائیے۔ علی سوئے بستر رسالت پر اور نبی ہجرت کر رہے ہیں، اور ایسے میں جب ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو یہ لوگ مدینے کی سرحدوں کے قریب پہنچے۔ رسول اللہ باہر نکلے اور نکلنے کے بعد جناب سلمان، جناب ابوذر، مولا کائنات اور ان سب کو واپس بلا کے یہ کہا کہ ہند سے ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ یہ لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد نبی نے ان کی زبان میں کہا اے رتن سین سب سے پہلے ہمارا وہ تحفہ دو۔ جناب سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی زبان ہے؟ کہا یہ ہند کی زبان ہے، یہ ہندوستان کی زبان ہے۔ اور فوراً کہ جسے ہمارے تحفے کی خبر ہے، اور وہ فوراً زمین پر اترے گھوڑے سے اور وہ تحفہ پیش کیا، اور تحفہ لے کر کے یہ لوگ وہاں تقریباً 3.5 برس تک رہے۔ اسی بیچ مولا کائنات کی شادی تھی، اس میں یہ لوگ شریک ہوئے، اور مسلسل مدینے کی گلیوں میں چلتے رہے اور درس تبلیغ حق بھی لوگوں سے لیتے رہے۔ اور ایک رات مدینے کی گلیوں میں رتن سین ٹہل رہے تھے، وہ رات تھی 15 رمضان المبارک کی، اور ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ کے آنگن سے عرش کی جانب ایک نور کا پلر ہے جو چل رہا ہے۔ کبھی وہ نور کا پلر زمین کی طرف آتا ہے اور کبھی وہ نور کا پلر عرش کی جانب جاتا ہے۔ اور فوراً صبح کی نماز میں آئے، یا رسول اللہ ہم نے آج پورے مدینے کو رات میں روشن دیکھا۔ کہا کیسی روشنی دیکھی؟ کہا علی و فاطمہ کے گھر کے آنگن سے ایک نور کا پلر جو آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ کہا ہاں آج ہمارے پہلا نواسا پیدا ہوا ہے اور اس کا نام حسن ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب رتن سین نے، چونکہ وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے گلے میں موتیوں کی 2 مالائیں تھیں، فوراً کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے نواسے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی رسول اللہ نے امام حسن کو منگایا گھر سے اور اس کے سامنے رکھا تو فوراً اس نے اپنے گلے سے موتیوں کا ہار فوراً امام حسن کے گلے میں ڈال دیا، اور جیسے ہی وہ ہار ڈالا موتی سفید تھا مگر گلے میں پہنچتے ہی وہ سبز ہو گیا۔ اب فوراً رتن سین کو یاد آیا کہ آخر کیا وجہ ہے، میرے گلے میں تو یہ موتی سفید تھا مگر اس بچے کے گلے میں آتے ہی ہرا کیوں ہو گیا؟ فوراً پوچھا یا رسول اللہ بتائیے اس کلر کے بدلنے کی وجہ کیا ہے، اس رنگ کے چینج ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فوراً رسول اللہ نے پوری سرگزشت بتائی کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے حسن کہ جسے زہر دیا جائے گا اور اس کا جسم سبز ہو جائے گا۔ یہ میرا نواسا سبز قبا ہے، سبز قبا ہے، اور اسی لیے تمہارے موتیوں کا ہار ہرا ہو گیا۔ اور پھر رتن سین وہاں رہے، رمضان گزرا، شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، یہاں تک کہ رجب کا مہینہ آیا اور 3 شعبان کی رات کو یہ رتن سین مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا کہ پھر اس نے دیکھا کہ ایک نور کا پلر اسی طرح سے جس طرح سے چند مہینوں پہلے اس نے دیکھا تھا، اور پھر وہ بے چین ہوا، صبح کی نماز میں آیا اور آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ یہ جو کیفیت ہم نے دیکھی ہے کیا پھر کوئی خوشخبری ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں آج ہمارا دوسرا نواسا پیدا ہوا ہے اور اس کا نام حسین ہے۔ پھر رتن سین کے دل میں خیال آیا کہ میرے گلے میں موتیوں کے 2 ہار تھے، ایک ہار تو میں نے دے دیا ہے اس بچے کو اور دوسرا ہار کیوں نہ میں اس بچے کو دوں۔ اور پھر وہی سوال کہ ہمیں لائیے دکھائیے، ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے امام حسین کو اپنی گود میں لیا اور رتن سین کے سامنے پیش کیا۔ فوراً رتن سین نے اپنے گلے سے موتیوں کے ہار کو نکالا اور جیسے امام حسین کے گلے میں دیا وہ موتی سرخ ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ کیفیت سبز اور سرخ کی اس نے جس طرح سے دیکھی، اور دیکھنے کے بعد فوراً سوال کیا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سرخ کیوں ہو گیا؟ اسی وقت رسول خدا نے رتن سین سے پورے واقعے کربلا کا ذکر کیا۔
کربلا کربلا آفاقی ہے، کربلا رسول کے زمانے میں تیار کر دی گئی تھی، اور اسی لیے رتن سین کے دل میں خیال آیا کہ کیسے لوگ ہیں وہ کہ جن کے قدموں میں پھول نچھاور کیے جائیں، جن کے سامنے ہار پھولوں کا پیش کیا جائے، جن کے گلے میں موتیوں کی مالا پہنائی جائے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو ان کے گلے میں خنجر اور گلے پہ تلوار چلائیں گے؟ اور اسی احساس کے ساتھ رتن سین وہاں سے چلنے لگے اور اپنے ہند کی سرزمین کی جانب آنے کو تیار ہوئے۔ رسول اللہ سے پوچھا ہم جائیں؟ کہاں بالکل جاؤ اور درس حق کے تبلیغ دین حق اپنے ایریے میں قریہ قریہ پہنچاؤ۔ لیکن رتن سین نے کہا ہمیں ایک معلم چاہیے۔ یہ بات میں آپ کو تاریخ ابن خلدون، تاریخ فرشتہ، تاریخ یعقوبی، تاریخ ناسخ التاریخ، تاریخ تبری، ان تمام تاریخوں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ بات فوراً جناب رتن سین نے معلم کی بات کی تھی، رسول نے کہا کہ آپ کا معلم ابو ذر غفاری ہے۔ آپ دیکھیے ہند کی سرزمین پر ابو ذر غفاری تشریف لائے ہیں، معلم دین حق بن کر، معلم دین حق بن کر۔ یہ ہے ہندوستان سے اہل بیت علیہ السلام اور امام حسین کا تعلق۔ جناب رتن سین کے ذہن میں کربلا ہے۔ کربلا کا واقعہ کب ہوگا؟ اپنے بچوں کو بتاتے، اپنے خاندان والوں کو بتاتے، اپنے پڑوسیوں کو بتاتے، راجا کی رعایا کو بتاتے، اور اسی بیچ رتن سین کا انتقال ہو جاتا ہے، مگر کچھ وصیتیں اس نے کی، اور پھر جب یہ معلوم ہوا کہ کربلا واقع ہونے والی ہے تو یہاں سے راجپوتوں کا ایک پورا قافلہ نصرت حسین ابن علی میں چلا۔ تاریخ فیروز شاہی میں یہ واقعہ درج ہے، ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے قائم ٹی وی کے ناظرین آپ ضرور مطالعہ کریں۔ تاریخ فیروز شاہی میں یہ مکمل واقعہ موجود ہے کہ یہ قافلہ راجپوتوں کا یہاں سے نصرت دین حسین میں، نصرت امام میں، لیکن چونکہ یزید کی حکومت ملک رے تک تھی، ملک رے کا مطلب ایران، تہران، یہاں تک یہ لوگ پہنچے نصرت حسین کے لیے، مگر سپاہیوں نے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نصرت حسین کو جائیں گے، ہمارے بزرگوں نے ہم سے وصیت کی ہے کہ جب بھی یہ واقعہ ہو تم ضرور جانا، ہم جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جنگ کی اور جنگ میں یہ لوگ شہید کر دیے گئے۔ یہ کم تھے وہ زیادہ تھے۔ تاریخ فیروز شاہی نے لکھا کہ جب شہید کر دیے گئے اور لاشیں پڑی تھیں ملک رے کی سرحد پر، کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ رات کے سناٹے میں کوئی لہو لہان شخصیت آئی جس کے جسم پہ زخم تھے، اور وہ ہر ایک سر کو ایک جسم سے جوڑتا رہا اور کہتا رہا قم باذنی، میری اجازت سے اٹھ کھڑے ہو۔ سر کو جسم سے جوڑتے رہے، سر کو جسم سے جوڑتے رہے۔ ایک مرتبہ جیسے یہ سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کون؟ کہا جس کی نصرت کو آئے تھے وہ حسین ابن علی، میری نصرت تم نے کی، گویا قبول ہو گئی، اور اب جاؤ یہاں سے اور جا کے ہندوستان میں کربلا کا ذکر کرنا، ہماری مظلومی کا ذکر کرنا، ہم پر جو گزری ہے اس کا تذکرہ کرنا۔ شاید یہی دلی خواہش تھی حسین کی کہ جو آج ہندوستان میں سبھی مذہب اور دھرم کے لوگ محرم میں حسین کو ضرور یاد کرتے ہیں، ضرور یاد کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان
हुसैन की यादों में बसा हुआ है। इमाम हुसैन की यादें चारों तरफ फैली हुई हैं। मेरे दोस्त के दो शेर याद आ रहे हैं कि हुसैनियों के दहन में दहन हुसैन का है, हुसैनियों के दहन में दहन हुसैन का है, ज़बां किसी की हो लेकिन सुखन हुसैन का है। और जहां पे प्यासों को पानी पिलाया जाता है, जहां पे प्यासों को पानी पिलाया जाता है, समझ लो ऐसा महल्ला हसन हुसैन का है। वाह वाह तो हिजर की सरजमी ऐसा लगता है कि मुहर्रम में हुसैन का महल्ला हो गया है। हुसैन की आवाज आ रही है, हुसैन की आवाज आ रही है। कायम टीवी के नाजरीन, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अब जो मजलिसें बची हैं उसमें आपकी तवज्जो की जरूरत है और आप जरूर जरूर मुलाहजा कीजिएगा। अब हम आज की मजलिस को जनाब शहजादे अली अकबर, जो इमाम हुसैन की चाहत थे, इमाम हुसैन की दिल की तमन्ना थे, आरजू थे, दुआ थी, आप मुलाहजा करें। और आज मैं दो बहन और दो भाइयों का जिक्र करना चाहता हूं। आरजू ये थी हुसैन की, जब सन 11 हिजरी में रसूल दुनिया से चले गए, इमाम हुसैन को नाना की याद आती रही, मुसलसल याद करते रहे। एक दिन ख्याल आया कि नाना आपकी तस्वीर मुझे बहुत याद आती है। रोज़े रसूल पे गए, कब्र पे हाथ रखा और दुआ की, परवरदिगार मेरे नाना की एक तस्वीर भेज दे। लीजिए, साल नहीं गुजरा था कि उम्मे लैला की गोद में नाना की मुकम्मल तस्वीर आ गई, अली अकबर की सूरत में। पेशानी रसूल के जैसी, बाल रसूल के जैसे, आंखें रसूल के जैसी, होंठ रसूल के जैसे, जिस्म रसूल की तरह। शुक्र अदा किया और आवाज दी, आओ मदीने के लोगों, मैं अपने बेटे के लिए सदका निकालना चाहता हूं, इसकी सलामती के लिए। अब एक मर्तबा आंगन में अली अकबर घूम रहे हैं, बच्चों की तरह खेल रहे हैं। अब हुसैन को मां की याद आई। तवज्जो करें कायम टीवी के नाजरीन, और मैं खुदा आपके आंसुओं को जनाब फातिमा के रुमाल में जगह जरूर जरूर मिले। हुसैन को मां की याद आई कि नाना की तस्वीर तो आ गई, अब मां की तस्वीर भी आनी चाहिए। हस्ब दस्तूर रोजाना शाम को रसूल के रोजे से निकल करके जन्नतुल बकी की कब्र पे गए और दोनों हाथ को रखा और आवाज दी, अम्मा आपकी तस्वीर याद आती है। जाहिर है कि हर बेटे को मां याद आती है। दोनों हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार मां याद आती है, इसलिए मां की कोई तस्वीर भेज दे। अभी साल नहीं गुजरा था कि फातिमा सुगरा पैदा हुई। ये दो यादगारें हुसैन के आंगन में, ये दो फूल हुसैन के गुलशन में यादगार के तौर पर हैं। एक दिन जैनब अब्दुल्ला के घर से आई और आवाज दी, भैया ये दोनों यादगारों को अपने पास रखोगे? अगर हो सके तो इनमें से एक मुझे दे दो। हुसैन खड़े हो गए और आवाज दी, बहन अगर यादगार को ले जाना है तो नाना की यादगार को ले जाना, मैं माँ की तस्वीर को तुम्हें नहीं दे सकता, सुगरा को मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसलिए कि सुगरा मेरी माँ की तस्वीर है। जनाब अली अकबर ज़ैनब की गोद में पलने लगे, यहां तक के मशहूर हो गया कि अली अकबर ज़ैनब के बेटे हैं। और जब 16 बरस के हो गए तो ज़ैनब ने मदीने की औरतों से कहना शुरू किया कि मैं अपने अली अकबर की शादी रचाऊंगी,
आने दो 18वां बरस। 18वें बरस का इंतजार ज़ैनब को, लेकिन अभी 17 ही बरस के थे कि 28 रजब का सफर शुरू हुआ और काफिले के साथ साथ ज़ैनब के अमारियों के साथ साथ निगहबान बनकर अली अकबर मदीने से निकले, मक्के आए और मक्के से यहां तक कि करबला आ गए। ज़ैनब का लिबास पहनते, ज़ैनब खाना खिलाती अली अकबर को, ज़ैनब पानी पिलाती अली अकबर को। खैमे लगे तो अली अकबर ज़ैनब के खैमे के पास दरबान बन के खड़े रहे कि मेरी फूफी का खैमा है। यहां तक कि शबे आशूर आई और शबे आशूर ज़ैनब का बड़ा इम्तिहान है और हुसैन का उनसे बड़ा इम्तिहान है। मुसल्ले पे बैठे हुए हैं हुसैन और अली अकबर। हुसैन और अली अकबर बैठे हुए हैं और एक मर्तबा नमाज शुरू की। नमाज पढ़ते पढ़ते चौबे खैमा से टेक लगा के अली अकबर बैठ गए और नींद आ गई कि एक मर्तबा ख्वाब से चौंके और आवाज दी, बाबा मैंने अजीबो गरीब ख्वाब देखा है। कहा बेटा बताओ कौन सा ख्वाब देखा है? कहा बाबा मैंने देखा है कि एक हैवानों का जंगल है और चारों तरफ से भेड़िए आपकी तरफ पड़ रहे हैं और मैंने देखा कि हैवानों ने एक खंजर से आपका बायां बाजू काट दिया। फिर मैंने देखा दाहिना बाजू कट गया। फिर मैंने देखा कि आपकी कमर झुक गई और फिर मैंने देखा कि आपकी आंखों से सुझाई नहीं देता। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया अली अकबर को और कहा बेटा मेरा बायां बाजू जो कटा है ना ये ओनो मोहम्मद है और मेरा दाहिना बाजू जो कटा है ये कासिम है। कल ओनो मोहम्मद मारे जाएंगे, कल कासिम शहीद किए जाएंगे और ये जो कमर झुक गई है ना बेटा ये तेरा चचा अब्बास जब साहिल फरात पे मारा जाएगा तो एक मर्तबा आवाज देगा मेरे आका मेरा सलाम और मैं कमर झुका के पहुंचूंगा और कहूंगा वाह अब्बास इन कसरत जहरी व किल्लत हीलती, ऐ अब्बास तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई। और एक मर्तबा अली अकबर कहते हैं बाबा बाबा तो ये आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसकी ताबीर क्या है? बस एक मर्तबा हुसैन रोने लगे और कहा बेटा इसकी ताबीर तुम हो। कल जब तुम्हें सीने पे बर्छी लगेगी और जमीन पर तुम एड़ियां रगड़ोगे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ भी सिखाई नहीं देगा, ये ताबीर तुम हो। बस सजादारो एक मर्तबा सुबह का वक्त आया और अजान देने की बात आई कि एक मर्तबा फिजा ने आवाज दी हुसैन ए फर्जंदे रसूल आपको ज़ैनब बुला रही हैं। जनाबे ज़ैनब के खेमे में हुसैन दौड़े हुए आए। ज़ैनब ने आवाज दी भैया मैं चाहती हूं कि आज अकबर अजान दे, इसलिए कि मुझे मालूम है कि कल के बाद अली अकबर की अजान सुनने को नहीं मिलेगी। हुसैन ने कहा ठीक है बहन आप कहती हैं तो मैं अली अकबर से कहता हूं। आए हुसैन दौड़े हुए, अली अकबर बेटा आज अजान तुम कहोगे। एक मर्तबा अली अकबर ने कहा बाबा आज मुझसे क्यों अजान कहलवा रहे हैं? कहा इसलिए कि तुम्हारी फूफी मेरी बहन ज़ैनब की तमन्ना है। एक मर्तबा जैसे ही फूफी का नाम सुना अली अकबर खुश हो गए कि मेरी फूफी ने मेरी अजान सुनने की बात की। खुशी खुशी आगे बढ़े। वक्त शहर हुआ लेकिन आगे बढ़ने के बाद रुके और रुकने के बाद कहा बाबा बाबा मेरी भी एक तमन्ना है। बस हुसैन ठहर गए और ठहरने के बाद कहा बेटा देखो कोई ऐसी तमन्ना मत करना कि बूढ़ा बाप जवान की तमन्ना को पूरा न कर सके। बस एक मर्तबा हुसैन ने कहा बेटा कोई ऐसी तमन्ना नहीं है, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। एक मर्तबा अली अकबर ने कहा बाबा मेरी तमन्ना सिर्फ इतनी सी है, इतनी सी ख्वाहिश है कि मैं अजान कहूं तो मेरी अजान की आवाज आपकी बहन ज़ैनब खैमे में सुने और मेरी बहन सुगरा मदीने में सुने। बस एक मर्तबा हुसैन ने कहा बेटा एजाज़े इमामत के तहत हम तुम्हारी अजान को अपने घर के आंगन तक जरूर पहुंचाएंगे, बेटा तुम अजान कहो। एक मर्तबा अली अकबर ने कहा अल्लाह अकबर। हुसैन ने हवा के
तोश पे अजान अली अकबर को अपने घर के आंगन में पहुंचाया। जनाब सुगरा उठी थी नमाज के लिए, हाथों में वजू का ज़र्फ था। जैसे ही अजान की आवाज कानों में सुनी, समझ गई कि मेरा भैया अली अकबर आ गया। वो जो मुसलसल याद करती थी कि मेरा भैया आएगा, मुझे लेने के लिए आएगा, जब शादी रचाएगा तो जरूर मुझे लेने आएगा, जैसे ही सुनी समझ गई कि अली अकबर आ गए हैं। उन्होंने मस्जिद नबवी में अजान कही है। दौड़ी दौड़ी नानी उम्मे सलमा के हुजरे में आई, आवाज दी। नानी मैं कहती थी ना मेरा भैया आएगा, मेरा भैया आ गया है, देखो अजान कह रहा है। उसके अजान की गूंज हमारे आंगन में पहुंच रही है। लेकिन अजादारों, आन करके सुगरा ने फौरन नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद खुदा का शुक्र अदा किया। ए मेरे परवरदिगार, तुम्हारा लाख लाख शुक्र कि मेरा भैया आ गया, मेरा भैया आ गया, मेरा भैया अली अकबर आ गया। यहां तक के नमाज तमाम हो गई, उजाला हो गया। जनाब सुगरा आके दरवाजे पे बैठ गई और बैठ के इंतजार कर रही है। कोई आहट आती है तो सोचती है शायद भैया आएगा, उधर से देखा शायद कोई आ रहा है, शायद मेरा भैया आएगा। मगर दिन चढ़ गया, अली अकबर नहीं आए। एक बहन मुंतजिर दरवाजे पे बैठी हुई है। अब इधर का हाल सुनिए। जैसे ही अली अकबर ने सीने पे बर्छी खाई और घोड़े से गिरे, आवाज दी, ए मेरे बाबा, मेरा सलाम कबूल कीजिए। अब एक मर्तबा हुसैन या अली कहते हुए दौड़े हुए निकले, मगर आंखों से कुछ सुझाई नहीं देता है। फौरन पूछते हैं, ऐना ऐना अली, ए अली अकबर तुम कहाँ हो, ए अली अकबर तुम कहाँ हो। मगर सीने पे बर्छी का फल इतना तेज लगा हुआ था कि अली अकबर कुछ आवाज नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन किसी सूरत से जब पहुंचने के बाद कहा, बेटा अली अकबर खैरियत तो है? कहा, बाबा सीने में बर्छी का फल है जो तकलीफ दे रहा है, आप अगर निकाल दें तो शायद मुझे कुछ आराम मिल जाए। एक मर्तबा दुनिया के सबसे बड़े साबिर हुसैन ने अपने घुटने को जमीन करबला पे टेका और टेकने के बाद कहा, या अली अदरिकनी, ऐ अली मेरी मदद करें। लेकिन एक मर्तबा अली अकबर गोया हुए और आवाज दी, ए बाबा, बाबा सुनिए, बर्ची का फल बाद में निकालिएगा, पहले मेरी एक तमन्ना पूरी कर दीजिए, मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। एक मर्तबा हुसैन ठहरे और ठहरने के बाद कहा, बेटा क्या ख्वाहिश है? कहा, सुबह मेरी अजान जिस बहन तक पहुंचाई थी, मैं आखिर वक्त में उस बहन को देखना चाहता हूं। बस लीजिए अज़ादारों, एजाज़े इमामत से जमीने करबला बुलंद हुई, जमीने मदीना को दिखाना शुरू किया। रोज़े रसूल दिखाया, जन्नतुल बकी दिखाई, सुगरा का हुजरा दिखाया, उम्मे सलमा का हुजरा दिखाया, आंगन दिखाया। अली अकबर कहीं देखा तुम्हारी बहन नजर आई, लेकिन अली अकबर ने कहा, बाबा मेरी बहन नजर नहीं आई। लेकिन जैसे ही सदर दरवाजा दिखाया, अली अकबर ने कहा, बाबा रुक जाइए, मेरी बहन बैठी है दरवाजे पर, लेकिन आप ये तो बताएं कि दरवाजे पे क्यों बैठी हुई है। कहा, बेटा जब से तुम्हारी अजान सुनी है, अभी तुम्हारे इंतजार में बैठी हुई है कि शायद मेरा भैया आ जाए। एक मर्तबा सूखती हुई सांसों से अली अकबर ने हिम्मत करके हाथ हिलाया और आवाज दी, बहन अब मेरा इंतजार मत करना, इसलिए कि अब हम तुमसे महशर में मुलाकात करेंगे। बहन खुदा हाफिज व नासिर, ए बहन खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह अलल कौमि ज़ालिमीन व सलामुल लज़ीना ज़लमू यमन क़ल्बिन क़ल्बून। बारिल्लाह मोहम्मद वाले के इस मुख्तसर नज़ारों को शर्त कबूलियत अता फरमा। मेरे खुदा हमारे तमाम अज़ादार जहाँ कहीं भी उनकी जान माल ताबरू की हिफाजत फरमा। मेरे खुदा हमारे वारिस को जल्द से भेज ताकि कायनात में परचम अम बुलंद हो सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। करम, ये थे अली जनाब क़िबला काबा मौलाना ज़फ़रुल हसन साहब क़िबला, जो अपने रौनक अफरोज़ बयान से क़ुलूब मोमिनीन को मुनव्वर फरमा रही थी। नाज़रीन किराम, हमारा वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह हम फिर कल 7 मुहर्रम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका मेज़बान नवाब साबिर आपसे इजाज़त चाहता है। शब ख़ैर, खुदा हाफ़िज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाह